Hello everyone, I am finally back after quite a while. With so much happening, I could not find the time to upload any videos on YouTube and I'm sorry about that. This time we are embarking on a road trip to Chikmagaluru and we have Choti Mummy with us. And look at Ira, she is sleeping. So we are at Hiri Save. I hope I am pronouncing it correctly. और हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं. The name is the Grand Chalukya. It was on the way and we have to drive for another 130 kilometers जो हमारा जहाँ stay है. And look at this, the family members are sitting over here. Hello. Hi Ira. Can you wear your glasses and say hi to everybody? At least wave like this. Hi. Okay, that's Choti Mummy and Mehul. And I'll turn the camera around. And yes, this is me. Ta-da! How is it? Is it nice? Is it nice? How is it, Ira? Is it nice? Can you give a thumbs up, please, if it is nice? Oh, nice. Chikmagaluru is a city and the headquarters of Chikmagaluru district in Karnataka. It is located on the foothills of the Mulyanagiri peak of Western Ghats and it attracts tourists because of its favorable hill station climate, tropical rainforest and coffee estates. We have reached our destination, which is the Stuga Cottages in Arasina, Guppe. Hi everyone, so finally we are back and it had been long since we planned a weekend getaway. So today we are in Chikmagalur, not exactly Chikmagalur, this place is little far from Chikmagalur and we have booked a place called Stuga Cottages. So this place is somewhere around 270 kilometers away from where we stay in Bengaluru. And if you look at the distance between Bengaluru and Chikmagalur, it is somewhere around 241 to 250 kilometers. So right now I'll just show you around the place and maybe I'll give you the cottage tour tomorrow. And we are going to stay here for 2 days. That's we have reached here. Today is Saturday and it's 17th of February, so we would be here until 19th of February. So let me turn the camera around and give you a view of the place where we are staying. हम चले बहारों में, ये गाना मैं सुबह से गुनगुना रही हूँ. आप भी देखो यहाँ से नज़ारा. ये जगह अब अगले 2 दिनों के लिए हमारा घर होगा. ये 2 कॉटेजेस हमने बुक कर लिए हैं और नीचे आपको किचन कम डाइनिंग एरिया दिख रहा होगा और यहाँ से हमें मुल्यानगिरी पीक भी दिख रहा है जो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे. So it's 5 p.m. in the evening and Aman is sleeping because he is tired. He drove to this place. In fact, हम सब tired हैं, but then we thought that we will sit outside and enjoy the view. और ईरा को देखो वो खेल रही है. And look at this. I can never get over the beauty of hills. टाडा! मीट फ्लूकी. तो यहाँ का ये पेट है. इसके अलावा 2 डॉग्स और हैं और ये जो फ्लूकी है मुझे पिटबुल और स्ट्रे डॉग का मिक्स लग रहा है. ईरा इज़ एड्रेसिंग दैट डॉग एज बगीरा क्योंकि हमारे घर में है हमारा पेट जिसका नाम बगीरा है. छोटी मम्मी एंड ईरा बोथ ऑफ देम आर एंजॉयिंग. से हाय ईरा. गुड मॉर्निंग. टुडे इज़ 18th of February और आज हम जाने वाले हैं हीरे कुलाले लेक और मुल्यानगिरी पीक. वैसे कल रात को मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम सब थक गए थे और हमने डिनर किया और हम वापस सो गए. तो चलो मुल्यानगिरी पीक. वी आर इन मुल्यानगिरी पीक और बहुत अच्छा है. ये बहुत खूबसूरत है. इनफैक्ट हाइकिंग के लिए तो बेस्ट है. आप यहाँ से नज़ारा देखो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा. और ईरा के साथ हम उतनी हाइकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं चिकमगलुरु आऊँगी तो मैं हाइकिंग के मोटो से आऊँगी.
फाइनली वी हैव रीच्ड हीरे कुलाले लेक। मुझे लगा था यहाँ बोटिंग के ऑप्शंस होंगे, पर फ़िलहाल वो ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। एंड इट्स वेरी सनी टुडे, तो मैं तो अब इससे आगे नहीं जाने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ कार में बैठने, बिकॉज ईरा इज़ ऑल्सो स्लीपिंग। मेहुल और अमन थोड़ा और आगे जाएंगे। Good morning. Today is 19th February and we are heading back to Bengaluru. But before that, as promised, मैं आपको देने वाली हूँ कॉटेज टूर। हमने 2 कॉटेजेस बुक किए हैं, तो दोनों कॉटेजेस सेम हैं। तो ये लो आप यहाँ का कॉटेज टूर। सो दिस इज़ हाउ द कॉटेज लुक्स लाइक। और इस कॉटेज में इन्होंने किंग साइज बेड दिया है। यू हैव अ टीवी यूनिट अलॉन्ग विद द कबर्ड। द कबर्ड इज़ स्पेशियस। देखो कबर्ड ऐसा है, और इसका जो टीवी यूनिट है इसमें भी कैबिनेट्स है, ड्रॉर्स है। तो आपको अगर अपना सामान रखना है तो आप यहाँ भी रख सकते हो। अब मैं आपको इसका ड्रेसिंग कम वॉशरूम वाला एरिया दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये मैं हूँ। हेलो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसका वॉशरूम। वॉशरूम बड़ा है और क्लीन भी है, तो नो कंप्लेन इन रिगार्ड्स टू क्लीनलीनेस। और यहाँ से देखो आप कॉटेज, और इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है, ये व्यू। तो आपको अपने कॉटेज और बेडरूम से ये व्यू मिलेगा। सो दिस इज़ द ह्यूज विंडो दैट यू हैव इन योर कॉटेज एंड यू कैन वेक अप टू दिस ब्यूटीफुल व्यू एवरी डे यू स्टे हियर। अब मैं आपको बाहर से भी इसका थोड़ा और टूर दे देती हूँ। तो आपको मैंने पहले दिन दिखा दिया था कि यहाँ 2 कॉटेजेस है, तो एक का तो मैंने टूर दिया है, दूसरा ये है। और मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ इसके किचन कम डाइनिंग एरिया में, जहाँ हम पिछले 2 दिनों से हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं। तो चलो, तो ये है उसका किचन कम डाइनिंग एरिया। ये भी बहुत क्लीन है, और यहाँ से भी आप अपना खाना खाते वक्त व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हो। वेकेशन का मतलब ही यही होता है, राइट, कि आप आओ, ये बहारों में बैठो, नज़ारों का मज़ा लो, और क्या। तो हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए। और ये देखो, रास्ते में हमें ये भी एंजॉय करने को मिला। आज है छत्रपति शिवाजी जयंती, तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाऊं। तो हमारा ये था छोटा सा ट्रिप टू चिकमगलुरु, क्योंकि छोटी मम्मी आई हुई थी हमारे घर, तो हमने सोचा कि उनको भी लेकर चले कहीं बाहर। और इतने दिनों से मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टिल देन, बाय।